So okay, dear, today we will discuss about the unification of German, Italy, and Britain. So earlier we have discussed what we are recalling the point we have discussed about the another hardship and popular revolt. Yes, na? Later on we have discussed the 1848 revolution. That was the different from the Great Revolution started before in German. So inside the German 1848 revolution is started by whom? Liberals. But when the liberals failure in this revolution, so it became started by only conservatives. So by with the help of the Persia king, they started the revolution. Conservatives, who are the supporters of the monarch or autocracy. So they have started the revolution. So making of German, Italy, and Britain today we will discuss. Can आर्मी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन एक स्टार्टिंग एक क्वेश्चन इज गिवन कि किसी भी नेशन का आर्किटेक्ट एक आर्मी हो सकती है. इट मे बी पॉसिबल और नॉट. तो थ्रू दिस पैराग्राफ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर कि ए नेशन मे बी फॉर्म बाय ए आर्मी और नॉट. तो बाय कंजर्वेटिव्स एंड स्टार्टेड द मूवमेंट विद द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. तो नेशनलिज्म सेंटिमेंट इज स्टार्टेड बाय द कंजर्वेटिव्स who always support to the autocracy. तो autocracy को support करते they have started the sentiment with the nationalism and nationalism sentiment started. अब why they started the nationalism sentiment? ये क्वेश्चन आता है. तो you know during the like after 1857 revolt we have started non-cooperation movement. We have discussed already in the nationalism in India. So in this when the British feel they too much weak after Second World War. So when they feel कि अब we can't continue rule inside the India or maybe the colonial nations जो भी colonies थे उनके India, China like this. तो when they feel कि it better than ये struggle करें कि हमें इनको freedom दे देनी चाहिए. जैसे ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, उन्होंने approach की उसकी freedom दी. तो as a situation happens inside the German में भी ऐसा हुआ कि उनको feel हो गया था कि it better than हमें खुद को फ्रीडम दे देनी चाहिए. जैसे कि ब्रिटिश ने किया. कैसे किया? आउट ऑफ वी कैन से कि ब्रिटिश ने ऐसा किया बिकॉज़ ब्रिटिश हैज फॉर्म्ड ए कमिटी व्हिच फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नो वन इंडियन इन दैट साइड. दैट्स व्हाई द इंडियंस अपोज दैट. साइमन कमीशन गो बैक इफ यू डोंट बिलीव. क्योंकि वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कमिटी फॉर्म की गई बाय ब्रिटिशर्स. And later on, when the Indian feel that no one is Indian inside this committee, कोई Indian members नहीं committee में, तो Indians oppose that. Simon Commission go back such type of a slogan used by the Indians. तो as it same feelings come inside the conservative के भी है कि better than अब ये continue नहीं रह सकते. That's why nationalism feelings develop हो ताकि एक sympathy रहेगी conservative ने इनको freedom दिलाए. तो German was not independent. It comes under the Persia king. जो Persia ruler थे उन्हीं के अंदर ही आता था जर्मन. जैसे कि इंडिया like it comes under the British or colonial nation, British nation. तो as it a movement started, or why the conservatives started the movement due to the failure of the liberals. Because earlier liberals had started the movement in 1848. After that, from the Persia took up the responsibility, or conservative took the responsibility along with the Persia king. Was the Persia king during that time and started the unification responsibility. And whom person play the important role? One marks question may become chief minister. Otto Bismarck play the important role. Otto Bismarck play the important role for this unification of German. तो Persian army and bureaucracy play the important role. तो यहाँ army एक nation को architect करी. तो between that struggle happens and within the along 7 years 3 war were fought. 3 war हुए along within the 7 years and war किसके साथ हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. ओके. तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस war happens in January 1871 after a German unification. Kaiser William I was proclaimed German emperor. So after when a nation become independent, तो who was the king who made the king? Kaiser William. जैसे कि यहाँ के कौन बने थे? Our nation was divided on the basis of religion. तो one was given to the Muhammad Ali Jinnah, another one Ejilai. तो Kaiser William was the king of the German. And
द न्यू स्टेट प्लेस। अब यहाँ इन दिस फॉर्मेशन, तो इंडियन फॉर्मेशन हुआ तो यू नो ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन अस कि हाउ टू वी फॉर्म द स्टेट। नेशन तो फॉर्म हो गया, बट यू नो नेशन स्टेट का यूनिफिकेशन कैसा होगा, तो वी हैव फाइंड द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप। आपने उसका लिंग्विस्टिक ग्रुप बेस किया। जैसे सपोज एनीवन स्टेट यूजिंग द हरियाणा लैंग्वेज, तो हरियाणा स्टेट, बिहारी लैंग्वेज बिहार स्टेट, पंजाबी लैंग्वेज पंजाब स्टेट, राजस्थानी लैंग्वेज राजस्थान, लाइक दिस। मेनी पीपल दे वर अपोज्ड इट, अपोज वी के ये इंडियन में आ गया हमें थोड़ा भी मत समझना कि यूरोप का नहीं चलता। ओके, आप वैसे देखिए तो यू नो many may be opposed that why if the earlier time you nation are divided on the basis of religion, so lot of rights responsibility, but if you divide the state according the language base, तो such situation may be degenerate, वापस हो सकती है। तो some may be opposed, but that responsibility taken by the Iron Man सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको responsibility दी गई unification of state। तो till now I hope there is no such except कोई little bit प्रॉब्लम को छोड़ दो तो मेजर सिचुएशन आज तक भी सामने नहीं आई है। लैंग्वेज बेस हमारे स्टेट अकॉर्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल आर वर्किंग, सब वर्क कर रहे हैं। ओके, तो एज इट हैपेंस एंड सम मॉडिफिकेशन डन बाय द जर्मन, जैसे हमने कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किए, बट जर्मन हैज मॉडिफाइड द आफ्टर यूनिफिकेशन। किस किस जगह मॉडिफिकेशन किया? मॉडर्नाइज द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज किया जर्मन ने। यू नो मॉडर्नाइज द लीगल सिस्टम, व्हाट आर द लीगल सिस्टम अर्लियर टाइम, उन सबको मॉडर्नाइज किया। बैंक्स वर सेंट्रलाइज, बैंक को नेशनलाइज किया जर्मन ने। एंड जुडिशरी मॉडर्नाइज और डेवलप किया जुडिशरी सिस्टम को, यू नो एक्सपांड किया, डेवलप किया प्रॉपर वे से आपको। तो दिस आर द फोर सिस्टम व्हिच वर डेवलप्ड बाय द जर्मन, बैंक, करेंसी, legal system and judiciary. So this was the unification, these are the story of unification of Germany. Two person who played the important role, Bismarck, another one is the Kaiser. Okay, और आर्मी played the important role। आर्मी से फॉर्मेशन हुआ क्योंकि वार किसने जीते? आर्मी ने। विदिन द 7 years 3 वार हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आर्मी played the important role in this formation। So this was the story of German unification। Okay, after that next formation, unification of Italy। in unification of Italy, okay, this was the formation of Italy, and in this you know Italy was divided in different parts। वैसे in your book it is given कि 7 different states were ruled on the Italy side। Okay, like in India Britishers were ruled, तो Egypt and it was divided into 3 major categories, different area of Italy ruled by the different ethnic groups or different power। Do you know this? We can divide northern part, central part and southern part, south, north, center and south। Okay, so northern part was ruled by the Austria, and most of that area comes known by the Habsburg। Austria king was ruled in that area, and at the center part you know Pope, or that in your book is given papal जो area, that was the rule by the Pope, you know church जो head of the, तो Pope state कहलाते थे central part, and southern part ruled by the you know Bourbon family, not a France वाली Bourbon family नहीं है, it is Bourbon family of Spain। तो Spain ruler were ruled in that area both along with the island। Okay, southern part along with the island, that is the visible or not here? Yes sir, ठीक है। Okay, तो that area ruled by the you know Italy was divided like this: Austria, Pope state and southern part Bourbon family of the Spain। और who were the native rulers of the Italian, जो वहाँ के princely rulers जो थे उनके अंडर में कितना सा एरिया दिखा था? 2 island only, small island ruled by only Italian princely state। और सार्डिनिया पेडोमेंट जो एक एरिया, तो इट वाज रूल्ड बाय ओनली इटालियन स्टेट्स ओनली, इटालियन प्रिंसली स्टेट। बुक में बातें देखते रहना आपको। तो इटालियन रूलर्स वर रूल इन दैट एरिया, जैसे कि इंडिया में वैसा हुआ। यू नो लास्ट रूलर एज ए नेमसेक, पावर गिवन फॉर ए बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने क्या पावर दिया? यू विल मे बी कीप इनसाइड और यू मे बी लिव इनसाइड द रेड फोर्ट, बट इन रिप्लेस ऑफ यू विल पे द चार्जेस और रेंट, आपको रेंट देना है। और नेमसेक के लिए उनको रूलर का, बाकी रेस्ट ऑफ इंटायर कंट्री वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश।
और नेट से के लिए रूलर किसको बना रखा था, बहादुर शाह को, और भी उनको रेट देना पड़ता था, रेट कोड का यूनिवर्सिटी क्लास से ध्यान ही रखो आपको बहुत टाइम होगा। ओके, तो इन हिस्ट्री वी हैव डिस्कस, तो एज इट हैपेंस इन इटली, तो डेट एरिया ओनली स्मॉल आइलैंड वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट, जो पूरा इटली जिनके अंदर आता था उनको एक आइलैंड दे रखे थे। तो दिस वाज द location geographical divisions of the Italy we have discussed, and different power rule inside the Italy. So what the different person or personality who play the important role in this unification we will discuss in it. So there are the different personality who play the important role in Italy unification. So who are the personality, first to name आ जाएगा, you know, one common name who play the important role, who form the two organization of secret assembly, young Italy and okay, and or another King Victor Emmanuel II also played the important role. कौन थे king? ये थे इटालियन प्रिंसली स्टेट वाले किंग। तो इन्होंने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, जैसे कि बहादुर शाह जफर also started the 1857 revolt. Okay, तो King Victor Emmanuel II also played the important role, and chief minister also play the important role. Chief minister who comes under the King Victor Emmanuel, so he given the responsibility to the chief minister. वहां भी chief minister don't confuse हो, क्योंकि वहां के chief minister का नाम है बिस्मार्क इन जर्मन, और यहाँ chief minister कौन है, केवल। तो responsibility given by the Emmanuel II to the chief minister to unify the Italy. Okay, तो इन दिस गुड रिलेशन विद द फ्रांस, इन चीफ मिनिस्टर के क्या अच्छे रिलेशन थे किसके साथ, फ्रांस के साथ। जैसे यू नो टुडे इंडिया हैज द गुड रिलेशन विद द फ्रांस, विद जापान, विद रशिया लाइक, तो दे आल्सो सपोर्ट विद द वेपन्स और अदर फाइनेंशियल हेल्प आल्सो। तो एज इटालियन प्रिंसली स्टेट और चीफ मिनिस्टर हैज द गुड रिलेशन, और जो चीफ मिनिस्टर ही वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक और रेवोल्यूशनरी, कुछ भी नहीं थे, ना तो डेमोक्रेटिक थे ना रेवोल्यूशनरी थे, कुछ नहीं, बस एज ए पोस्ट ही वर्क फॉर ए आफ्टर व्हाट एवर रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय। क्या हुआ आदित्य, तुम्हें मैं निकाल दूंगा, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे है ना डेली की अपडेटेशन रिपोर्ट मांगते हैं, और तुम सबसे कैजुअल अप्रोच शो करते हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग चलती है, डेढ़ सौ में तुम्हें किसी को डांटना नहीं चाहता, तुम्हें हंसना है तो भाग जाके हंसो आराम से बस। अब इसके बाद जैसे रिवीजन होगा ना, तुमसे पूछूंगा मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो दिस वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द Emmanuel II, and good relation with the France. So with the his efforts, Austria forces in 1859, तो सबसे फर्स्ट कहाँ स्टेप ली इन्होंने, इन डेट एरिया 1859 में ऑस्ट्रिया को आउट कर दिया इस एरिया से, नॉर्दर्न पार्ट से। 1859 he out from the dead area, northern part of the Italy, Austrian forces. After that he you know this sentence so very well, you are not revolutionary or democratic, and another person who played an important role, Giuseppe Garibaldi. ओके, तो डेट वाज, ये दोनों डिफरेंट है, मेजेनी और ये डिफरेंट है। Garibaldi was play the important role for that area, southern part, इस वाले रोल के लिए सबसे। अब Garibaldi जो वहां के पर्सनालिटी थी उनकी, उन्होंने एक important रोल प्ले किया, किसके, with the help of the peasants। इस एरिया में सबसे ज्यादा peasants और farmers रहते थे, तो फार्मर्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ peasants, Garibaldi played the important role for the southern part of Italy, और यहाँ पे फ्रीडम मिली उनकी हेल्प के थ्रू। ओके, तो यू नो बर्बन फैमिली ऑफ द स्पेन आउट फ्रॉम दैट एरिया, बट देयर इज द वन सेंटेंस गिवन इन योर बुक, दोस peasants who were living in that area they were illiterate कुछ ज्यादा ही थे वो। तो उन्होंने क्या किया, यू नो जैसे कि हम वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन्स फॉर इंडिया लाइक भारत माता, वंदे मातरम, टू मोटिवेट द पीपल। ओके, द फ्रीडम मिशन विल स्टार्ट, तो वंदे मातरम, भारत माता, तो एक ही स्लोगन यूज बाय द Garibaldi that is like Italia, Italia इस टाइप से कुछ यूज किया उन्होंने इटली के लिए। तो व्हाट मीनिंग दे, लेकिन उसका मीनिंग उन्होंने क्या निकाला कि इटालिया इज द नेम ऑफ वाइफ, जो हमारे इमानुएल II ने उनकी वाइफ का नेम है, और समवन इज कैप्चर और अनेक्स्ट उनको हटा दिया किसी ने या कंट्रोल कर लिया, तो वो मूवमेंट और तेज कर दिया उन्होंने। तो दैट वाज द ये ओनली वन सेंटेंस और टू सेंटेंस गिवन रिगार्डिंग दैट, वो ये नहीं है कि मीनिंग दे वांट टू शो थ्रू दिस, दे वांट टू कन्वे द कांसेप्ट कि they were illiterate, वो ज्यादा illiteracy rate in that area, तो ये भी देखता है इन योर। एंड
आफ्टर दैट ये तो यू नो जब इनको लगा कि टू पावरफुल है चर्च, तो यू नो एथनिक कंपोजिशन बेस पे रूल करते हैं पोप, तो व्हेन दे फील कि बोथ मे बी आउट फ्रॉम द इटली, तो व्हाई नॉट उन्होंने सेंट वालों ने बिना किसी रेवोल्यूशन के खुद सरेंडर कर दिया किसको, इटली को। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें मेन पॉइंट है whom what the personality whom play the important role, और क्या important role है, it not a more than one or two sentence, like जैसे important role Emmanuel II given the responsibility to the chief minister, first chief minister take the step in Austria in 1859, okay. Another one Garibaldi take the step in the southern part of Italy with the help of the peasants or farmers, okay, or one or two sentence whatever given you may be right. Another one Pope state वैसे सरेंडर कर दिया, तो that was the story of Italy unification. Okay, see the unification of Britain, and it is not happens within the sudden or within the sudden movement or like it to the war. जैसे war में तो क्या हो रहा है, if you defeated anyone, तो आप वहाँ power में आ जाते हैं, तो sudden this may be, but it happens through the long process without anyone. In unification of Britain. So unification of Britain, to understand this, first we should be know the concept of Britain. So you know that area is known as the Britain. Okay. Which one? England, Scotland, और इसको आप include कर लोगे तो that area known as the Great Britain. ये Great Britain. If तो ग्रेट ब्रिटेन, वैसे तो इंग्लैंड तो नो सिंपल, ये इंग्लैंड हो गया, ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू वीकेन राइट, दैट एरिया नोन एज ब्रिटेन प्लस वीकेन इज स्कॉटलैंड इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, ग्रुप ऑफ द डिफरेंट नेशन, कौन कौन से नेशन, स्कॉटलैंड, दैट इज नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन। इफ अब एंड वी एड इन ग्रेट ब्रिटेन यानी all three nations along with Northern Ireland equal to UK, इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। अगर इसमें नॉर्दर्न केवल एक आइलैंड छूट जाता है, रिपब्लिक आइलैंड, ओके। तो इफ यू इंक्लूड द नॉर्दर्न आइलैंड तो दैट एरिया नोन एज द यूके, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके नेशन। और इफ यू ऐड रिपब्लिक भी इसमें ऐड कर दे तो दैट इज नोन एज द ब्रिटिश आइलैंड, नॉट आइलैंड आई से। तो यू नो प्रेजेंट टाइम जो हम यूज करते हैं डेट वर्ड, और इसका एक यू नो जेक प्लेट भी बना हुआ है, जैसे आप देखते हो ब्रिटेन वाले की क्रॉस लाइक इस टाइप से होता है ना। तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्रिटेन, तो दिस डेट एरिया नोन एज द इंग्लैंड, अनदर वन डेट एरिया इफ यू इंक्लूड द ऑल थ्री नेशन दैट इज नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन, और वी हैव द नॉर्दर्न आइलैंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, और पूरा मिला के। तो यू नो यहाँ पे कंपोजिशन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इट इज एथनिक कंपोजिशन, क्योंकि इन यूरोप जैसे हर रिलीजन में टू पार्ट होते हैं, अधिकतर डिवाइडेशन जहाँ कम्युनिटी जहाँ पे यू नो सिटीजन्स होते हैं वहाँ डिविजन्स बनी जाते हैं, वो कोई भी ग्रुप हो। तो लाइक हिंदुइज्म आल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट, जैनिज्म आल्सो डिवाइडेड लाइक श्वेतांबर और दिगंबर जो होते हैं, बुद्धिज्म आल्सो डिवाइडेड इन यान महायान, you know Muslim also divided in Shia and Sunni, so Christianity also divided in Catholic and pro, बोलो ना, Catholic and कोई तो ग्रुप है सही बोला, आधा इनमें दे दिया प्रो, आप प्रोटेस्टेंट तो हो गया ना, कैथोलिक एंड प्रो। तो दिस वाज द टू ग्रुप, कैथोलिक बेस में टू ग्रुप थे, one was the Catholic and another one the Protestant. So you know Protestants जो थे इंग्लैंड में, mostly they were in majority, मतलब not in England they were majority इंग्लैंड में, but in this Great Britain, जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें कैथोलिक मेजोरिटी में थे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, कैथोलिक इन मेजोरिटी इन ग्रेट ब्रिटेन और इन यूके, ओके। तो प्रोटेस्टेंट जो थे और मेजोरिटी में थे, बट ये नहीं कि माइनॉरिटी में कौन आ गए फिर, प्रोटेस्टेंट इनसाइड द स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड ने क्या किया, यू नो इंग्लैंड इनको फाइनेंशियल हेल्प देना स्टार्ट की, फाइनेंशियल हेल्प, दोज हु वर द प्रोटेस्टेंट नॉट अ कैथोलिक,
यानी स्कॉटलैंड में जो माइनॉरिटी में रह रहे हैं प्रोटेस्ट, उनको फाइनेंशियल हेल्प किसने देना स्टार्ट की? ब्रिटिश ने, इंग्लैंड। अब आप सोचोगे सर इट इज कैथोलिक मेजॉरिटी में, तो वह मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द प्रोटेस्ट बिकॉज़ प्रोटेस्ट दे वर डेवलप्ड। क्यों डेवलप थे? आप इसका पता कोई क्रेडिट नहीं, यू नो वेरी वेल कि इतने छोटे नेशन ने चाइना, श्रीलंका, इंडिया सबको कॉलोनियल नेशन बना रखा था। वी वर पार्ट ऑफ दिस इंग्लैंड ना ओनली, इसलिए बना। तो दे वर पावरफुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे फर्स्ट आया वो कहाँ है? ब्रिटेन में है। इन तो यू नो दे वर मोर पावरफुल, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड द इंटरफेयर इनसाइड द स्कॉटलैंड, और कैथोलिक को इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और सपोर्ट किसको किया? प्रोटेस्ट, क्योंकि सेल्फ कम्युनिटी रहती। तो फाइनेंशियल हेल्प देना उनको स्टार्ट किया प्रोटेस्ट को। तो क्या, जैसे कि यू नो अभी व्हाटएवर मूवमेंट इज गोइंग ऑन इनसाइड इंडिया, जैसे किसान मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट है, तो दे आर गेटिंग द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द अदर डिफरेंट नेशन। अभी जो खालिस्तान मूवमेंट चलता है उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प आती है फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, सेल्फ कम्युनिटी हु आर लिविंग इन सच अब्रॉड नेशन। जो सेल्फ कम्युनिटी अब्रॉड नेशन में रहते हैं, दे आर फाइनेंशियली डेवलप्ड, जिनके पास करोड़ों रुपए फाइनेंशियल इतने डेवलप है, हेल्प देते हैं। जैसे कि यू नो सभी ग्रुप्स के लिए आते हैं। एंड एजिट मूवमेंट में भी स्टार्टेड, यू नो किसान जो मूवमेंट हो रहा है दिल्ली, सपोर्टेड बाय द प्रोस्पेरस पीजेंट्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। इसीलिए पॉसिबल तो नहीं इतने टाइम के लिए राशन और सब प्रोवाइड करना हो गवर्नमेंट को दे रही हो, तो हूं सपोर्टिंग दोस हु आर द प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा। ये इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कलेक्शन आ रहा है। तो Egypt they started the interference inside the Scotland by the protest start the interfere। तो यू नो फर्स्ट इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया क्योंकि अर्ली टाइम इंग्लैंड वाज मोनार्की। तो थ्रू दिस एक सिस्टम स्टार्टेड एंड फाइनली व्हाट इज टेकन इनसाइड द इंग्लैंड एंड ब्रिटेन। हिमांशु एंड फाइनली व्हाट स्टेप टेकन बाय द इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स, they declare himself as the independent, और नेम सेट के लिए उन्होंने इनको रख दिया क्वीन जो भी थी वो। तो दैट सिस्टम क्या आपकी क्वीन रही, मोनार्की रहेगी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे बनी है फ्रांस एजिल लाइक, जैसा कि हमने देखा 1857 के रिवॉल्ट तक क्वीन रूल करती थी। लेटर ऑन उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ 1857 का जो मूवमेंट हुआ उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव किया गया और वो इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नर सिस्टम। उसके बाद गवर्नर्स बनना स्टार्ट हो गए थे और लास्ट गवर्नर जो इंडिया को फ्रीडम मिली वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, गवर्नर सिस्टम जैसे यू नो गवर्नर सिस्टम हेरेंस थे, और ये स्टार्टिंग गवर्नर जो सिस्टम स्टार्ट हुआ इनसाइड इंडिया। तो एजिप्ट इन ब्रिटेन स्टार्टेड द मूवमेंट। अब कब मूवमेंट हुए, सी द डेट। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन एज स्टार्टेड, इट वाज नॉट happens with sudden, it is through the long process only। ये long process ड्यूरेशन है। तो various ethnic groups were living inside the United और Britain, English group also living, England हो गया, Wales you know nation, another one is the Scotland। Scotland ये वही नेशन है जहाँ के जेम्स मिल थे। जेम्स was the citizen of who divide the Indian history, थ्री पार्ट में जो डिवाइड किया है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसमें बुक में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो इंग्लिश पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड ए मूवमेंट और सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की। 1688 में फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट किया इनसाइड इंग्लैंड और इन्होंने मोनार्की को सीज कर दिया पावर, लिमिटेड पावर थी मोनार्की के लिए इनसाइड। 1688 फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड इनसाइड द इंग्लैंड एंड इन दिस व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हो गई यहाँ पे। और सेकंड इज व्हाट था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आफ्टर लेटर ऑन सेकंड एक्ट इज पास बाय द ड्यूरिंग 1707, एक सेकंड एक्ट इन्होंने पास किया 1707 में एंड स्कॉटलैंड को किसने मर्ज कर लिया, इंग्लैंड में, वेल्स और स्कॉटलैंड को दोनों को मर्ज कर लिया। तो थ्रू द एग्रीमेंट हुआ, यहाँ कोई वार नहीं हुआ। एक एग्रीमेंट जैसे यू नो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, बट वो एट द एंड ऑफ वार हुई, पर ये एग्रीमेंट के थ्रू हुआ। तो सेकंड एग्रीमेंट हैपेंस इन 1707 एंड इन दिस एग्रीमेंट एक्ट ऑफ यूनियन बोला जाता है 1707। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बिकम ए यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन बन गए इसको मिलाने के बाद। ओके, ग्रेट ब्रिटेन का भी यूके नहीं आया, यूके में तो कौन आएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड है।
आफ्टर दैट केस ऑफ आयरलैंड, केस ऑफ आयरलैंड में क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट, जैसा मैंने बता दिया, यू नो आयरलैंड में भी कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, जैसे मैं अभी और एग्जांपल देता हूं आपको। एंड फिर द रिवोल्ट, अब यहां जब मूवमेंट किया ना इनसाइड द आयरलैंड, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपोज किया। Who was the person who opposed that movement? That opposed by the, you know, Walton is opposed this system, but he was failure. Name is given in your book. बाद में देख लेना। तो he was failure against the British revolt and against 1798 में इन्होंने अपोज किया था। After Ireland plus Great Britain equal to, ये एग्रीमेंट हुआ 1801 में। आयरलैंड को इंक्लूड कर लिया किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में, तो क्या हो गया यूनाइटेड किंगडम। तो फर्स्ट हुआ 1688, लेटर ऑन सेकंड हुआ 1707, स्कॉटलैंड को मर्ज किया ग्रेट ब्रिटेन में, एंड थर्ड वन 1801, यानी ग्रेट ब्रिटेन को मर्ज कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ओके, और लेटर ऑन यूनाइटेड, दैट द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लैंड। तो इन दिस, अब इन्होंने आफ्टर, जैसे कि यू नो जर्मनी हैज मॉडिफाइड द बैंकिंग, जुडिशरी, लीगल सिस्टम, करेंसी, तो इन्होंने पूरा आयरलैंड मिला के एक नेशन बना दिया, दैट इज नोन एज द ब्रिटिश नेशन, एंड दे मेक द सेपरेट फ्लैग फॉर दैट। किस टाइप का फ्लैग है, यूनियन जैक जिसके अंदर होते हैं, यू नो लाइक होता है ना फ्लैग, तो यूनियन जैक फ्लैग इज मेड फॉर दिस ग्रुप, एंड नेशनल एंथम आल्सो मेड, and English language is composed the imposed in that area. English को एक language बना दिया। तो that was the story of Great Britain, unification of Britain. So dear, we have completed the 3 unification. First one German, Italy, and Britain.